آئے ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. اس کے اس اکٹھے ہونے کے لیے، اس کے پیار اور محبت اور فضل کے لیے، اور اس کے اس شفقت کے لیے اور اس فکر کے لیے کہ جو وہ ہماری جسمانی خوراک کے ساتھ ساتھ روحانی جو خوراک ہے وہ بھی ہمیں وہ مہیا کرتا ہے. ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہر روز ہمیں اکٹھا کرتا ہے اور اپنے چرنوں میں آنے کا فضل بخشتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں. اس کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں. جو زندگیاں آ گئی ہیں اور جو زندگیاں آنے کو ہیں ان کے لیے ابھی سے ہم خداوند کی حضوری کو اور خداوند کے فرشتوں کو ہم ان زندگیوں کے لیے مانگ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند تمام اس کا جو پاک ہوا ہے ہر طرح کے بندھن کو کھولے، جوئے کو توڑے اور رکاوٹوں کو دور کرے، تاکہ اس کے لوگ جو اس کے شدائی ہیں، جو اس کی حضوری میں آنا پسند کرتے ہیں، وہ آئیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کی بادشاہی میں بادشاہی کو پھیلانے کا باعث بن سکے. آئیں خداوند کا شکر ادا کریں اپنے زندگی میں تمام تر حالات کے لیے، تمام تر باتوں کے لیے. ہم اپنے خدا کو آنر کریں گے، ہم اپنے خدا ہی کو مبارک کہیں گے کہ وہی ہے جو ہمارے حالات اور مستقبل سے ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے مستقبل سے ماضی سے واقف ہے، ہمارے فیوچر سے واقف ہے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے اور وہ ہمارا ایسا خدا ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آج جو بھی کلام کا بیج بویا جائے، جو بھی باتیں ہوں، جو بھی پرستش ہو، جو بھی کلام ہو، اور جو زندگیاں اس میں شامل ہوں بائبل ریڈنگ کے تعلق سے اور کلام اور ورشپ کے ذریعہ سے اور کلام سنانے کے وسیلہ سے، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند کا پاک اور انتمام اس پورے گروپ میں، اس ٹائم پیریڈ میں پاک روح جنبش کرے اور بڑے زور سے اپنے لوگوں کو قوت طاقت دے، تاکہ اس کے لوگ بڑی ہی اس کی قدرت کو دیکھ سکے اور اس کے پاک روح کی جنبش کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اس گروپ میں، اپنے زندگی میں، اپنے ایریا میں یسوع مسیح کے نام سے محسوس کر سکے. ہاللویہ. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف و ستائش کرتے ہیں. اے باپ تو ہی ہے جو ناممکنات کا خدا ہے، تو ہی ہے جو امپاسبل کو پاسبل بناتا ہے. اے باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ہی تعریف و ستائش کرتے ہیں. آج یہ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند تو نے اپنے لوگوں کے لیے خداوند روحانی خوراک جو رکھی ہے، اس بات تیرا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی بندی کے ساتھ ہو اور خداوند تیری بندی کی ساری خدمت سے، اس کے سارے کلام سے تیرے نام کا عزت و جلال ملے. تیرا ہی شکر اور تیری تعریف ہو. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں مسیح تیرے بیٹے یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور القادر نام میں، آمین. آمین. ہمارے ساتھ آج انجنا ہے ورشپ کے لیے اور سونی ہے اور سارا ہے. جی انجنا، ہم انجنا کے ساتھ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ہم انجنا کے ساتھ ورشپ میں شامل ہوں گے. پریز دی لارڈ. فضل نال رب بخش گناہ سب میرے، فضل نال رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تو یوتے میرے، وانگو فضل رحم کر تو یوتے میرے، فضل نال رب چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینو کر تو پاک
साफ बख्श दे सब बुराई फजल नाले रब क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लैंदा क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लैंदा मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा फजल नाले रब ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी तेरे ही हजूर च बदी कीती सारी फजल नाले रब ता तू अपनी गल विच सच्चा हो हर बार ता तू अपनी गल विच सच्चा हो हर बार रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत फजल नाले रब मैं नी पैदा होया ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਰੱਬ बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू योते मेरे वांगू फजल रहम कर तू योते मेरे फजल नाल Praise the Lord. खुदावन को Praise the Lord. Thank you अंजना, God bless you. हम आगे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो आज का जो पाक की जो नेमत है, जो गिफ्ट है, वो है मिरेकल। तो हम इसके हवाले से एक देखेंगे यिर्मयाह की किताब पुराने नामे में 32 बाब उसकी 27वीं 27वीं आयत में लिखा है, तब खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ। देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा खुदावन कह रहा है कि मतलब मैं ही खुदा हूँ, मैं ही हर चीज पर कादिर हूँ, हर चीज मैं ही क्या हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो हम अपने खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है।
وہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا خدا ہم سے کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کلام کر رہا ہے کہ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اپنے خدا کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے کہ ہمارے خدا کے سامنے کوئی بھی ناممکن کام ناممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے ورشپ میں سنیا کے ساتھ ورشپ میں آگے بڑھیں گے۔ ہم سنیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سنیا آئے اور آگے ورشپ میں ہمیں لیڈ کرے۔ Praise the Lord. جو میرے یسودی کرے میزبانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، او کردار ویگا، او کردار ویگا جگتے حکمرانی، او میرے جو میرے یسودی کرے میزبانی، شاما بادشاہ شہنشاہ بادشاہ میرا میرا یسو، شاما بادشاہ شہنشاہ بادشاہ میرا میرا یسو، بے ادبی جہالت کفر دے ہنیرے، آیا مسیحا تے ہو گئے سویرے، بے ادبی جہالت کفر دے ہنیرے، آیا مسیحا تے ہو گئے سویرے، او کردہ خدا دی، او کردہ خدا دی صحیح ترجمانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، او کردار ویگا، او کردار ویگا جگتے حکمرانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، شاماندشاہ شہنشاہ بادشاہ میرا میرا یسو، شاماندشاہ شہنشاہ بادشاہ میرا میرا یسو، زمانے تے جس دا سدا فیض جاری، چلو دے درشن دی کریے تیاری، زمانے تے جس دا سدا فیض جاری، چلو دے درشن دی کریے تیاری، سدا روندے رانگے، سدا روندے رانگے جے کیتی نادانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، او کردار ویگا، او کردار ویگا جگتے حکمرانی، جو میرے یسودی کرے میزبانی، رباب و دینا تو میں قربان جاواں، او مشکل کشائے او دے گیت گاواں،
रुबाबो देना तो मैं कुर्बान जावा ओ मुश्किल कुशाए ओ दे गीत गावा सुने सारी दुनिया सुने सारी दुनिया ए मेरी जुबानी जो मेरे यसुदी करे मेजबानी जो मेरे यसुदी करे मेजबानी ओ करदार वेगा ओ करदार वेगा जगते हुक्मरानी शामांदा शासन शाह बादशाह मेरा मेरा यसू शामांदा शासन शाह बादशाह मेरा मेरा यसू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल Praise the Lord. Thank you, Sanya. God bless you. खुदा इस तरह आपको इस्तेमाल करे और अपने नाम को जला देने के लिए कसरत से अपने मसा को, अपनी रूह को आपके अंदर उंडेले और अपनी आग आपके अंदर लगाए और आप इस तरह उसके लिए गाती रहें, उसका नाम को चिरा देती रहें। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और सताइश करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम एक हवाला पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 16 बाब उसकी 17वीं आयत से हम सुनेंगे। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिए तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका की अंजील उसका 18 बाब में उसकी 27वीं आयत में लिखा है, 26वीं आयत में लिखा है, उसने 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 कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। सो आए हम अपने खुदावंत का शुक्र अदा करें कि हमारा खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है, और नेमत है, ये जो नेमत है वो हमारे अंदर अंडेलना चाहता है। तो हम खुदावंत का शुक्र अदा करें कि जैसा कि हमने इससे भी पढ़ा है कि कि वो उस हमें क्या कि खुदा ने हमें ये कुव्वत दी है, खुदा ने हमें ये ताकत दी है कि हम क्या करें, उसके जो उसके नाम पर उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। तो खुदा कह रहा है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। सो आए हम ये अपने अंदर ये ख्वाहिश रखें, ये दुआ करें कि खुदावन तू मुझे अपने इस गिफ्ट से, इस नेमत से तू मेरी जिंदगी को भर दे, इस नेमत को तू मेरी जिंदगी में आने दे। खुदावन मैं चाहती हूँ कि खुदावन ये नेमत मेरे अंदर काम करे, ताकि जो तू कह रहा है वो मेरी जिंदगी से जाहिर हो, मेरी जिंदगी से, मेरे हाथों से अब आप वो हो जो, क्योंकि तूने खुद कहा है कि जो खुदा से, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि तू हमारा ऐसा खुदा है जो सारा कुछ ये मिरेकल, ये मौजज़ात जो है तो अपने लोगों को करने की कुदरत है जो वो तू देता है। आए खुदावन से कहें, आए हम इसके अपने आप का कहें कि खुदावन मैं इसमें बढ़ना चाहती हूँ, मैं इसको हासिल करना चाहती हूँ, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, मैं इसके लिए अपने आप को पेश करना चाहती हूँ। खुदावन तो अपना हाथ मुझ पर रख, खुदावन तो अपनी बड़ी कुदरत को मुझ में जाहिर कर अपने पाक रूह के वसीला से। आए खुदावन से कहें और मांगे इस गिफ्ट को यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ की सताइश करेंगे। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तू हमारा खुदा है और हम तेरे लोग हैं, और तू अपने लोगों को हर तरह की नेमत को, खुदावन नेमत को अंडेलना चाहता है। अब बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इसी तरह खुदावन हम वर्शिप में अब आप आगे बढ़ेंगे, हम सारा और समर के साथ वर्शिप में शामिल होंगे।
جی ٹھیک ہے، ہم زبور 91 گا لیں گے، اس کا دوسرا حصہ یہ رہا میری بنا ہے تو ہے میری جان. Hallelujah, praise the Lord. اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 11 اور 12 آیت ہم پڑھیں گے. اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا. اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. سو آئے ہم خداوند کا شکر ادا کریں. جہاں انسان سے ناممکن ہوتا ہے وہاں خدا ہمارا جو ہے وہ ممکن کرتا ہے.
आए खुदावन का शुक्र अदा करें उनके उसके खादमों के लिए, उसके रसूलों के लिए, उसके शागिर्दों के लिए। आज हम भी आज खुदा हमें भी यही जो नेमत है वो ट्रांसफर हमें करना चाहता है हमारे ग्रुप में कि हम इस गिफ्ट को खुदा हमारी जिंदगी में भी वो उंडेलना चाहता है, हमें देना चाहता है कि ताकि हमारे वसीला से भी उसकी जो बादशाही है वो वसत पाए और दुश्मन की बादशाही है वो जो सुकड़े। सो खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं। आए हम चाहेंगे कि खुदावन ऐ बाप तू ऐ बाप मेरी जिंदगी में भी इस नेमत को, इस गिफ्ट को तू ऐ बाप कसरत से अंडेल, ताकि खुदावन जिस तौर से बाप तेरे तेरे लोग खुदावन जिस तरह बाप पालूस से खुदावन ऐ बाप पतरस के वसीला से बाप लोग ऐ बाप शिफा पाते थे, तंदुरुस्ती पाते थे। ऐ बाप इसी तरह से आज तू खुदावन इसी खुदावन मौजज़े की मिरेकल्स को ऐ बाप तू हमारी जिंदगी में भी खुदावन अंडेल दे ऐ बाप इस नेमत को ऐ बाप, ताकि ऐ बाप हमारे हाथों से खुदावन ऐ बाप तेरे नाम को जलाल मिले। जब खुदावन हमारे हाथ ऐ बाप बीमारों पर उठे, हाँ ऐ बाप तो ऐ बाप वो चंगे किए जाए, खुदावन वो शिफा पा जाए। ऐ बाप तेरा शुक्र तेरी सताइश करते हैं जलाल के बादशाह। यस लॉर्ड हालेलुया। आए खुदावन का शुक्र उसकी तारीफ करें कि खुदावन तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा बाप है, हम तेरे लोग हैं और तुम्हारा खालिक और मालिक है और तू सब कुछ करने पर कादिर होता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और आज की सारी प्रस्तुति के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और आगे हम अपने आप को कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम चाहेंगे सिस्टर शाहीन को कि वो आए और आगे जो कलाम की खिदमत खुदावन उनको बख्शी है, खुदावन अपने उस आवाज को अपनी बंदी के वसीला से हमारे जिंदगियों में वो जो कलाम है हमारी जिंदगी में गहरा जो गहरी जड़ पकड़े, ताकि हम बहुत सा फल ला सके। हम सिस्टर शाहीन हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का पाक रूह खुदावन की बंदी पर गहरे तौर पर हो और खुदावन की जुम्बश यहाँ पर जोर से हो और खुदावन की आग यहाँ पर नाजिल हो और आमीन। खुदावन का हाथ यहाँ पर छाया रहे और खुदावन के फरिश्ते उसके जहाँ पर बैठी है फरिश्ते वहाँ पर जो उतर आए यीशु मसीह के नाम से और आमीन। यस Yes, लॉर्ड Lord. हालेलुया। Yes, Lord. खुदावन तेरी हजूरी तेरी बंदी पर गहरे तौर पर मांगते हैं। खुदावन अब्बा तेरे निगहबान फरिश्तों को खुदावन तेरे दावन बाप खुदावन बाप तेरी पाक रूह की जुम्बश को कसरत से मांगते हैं, तेरे कलाम की कुदरत को खुदावन तेरी बंदी के वसीला से मांगते हैं Yes, यीशु मसीह Lord. के नाम Yes, से। Lord. तेरा Yes, शुक्र और Lord. तेरी यीशु के तारीफ नाम। और तेरी हजूरी का बलबा तेरी बच्ची पर जोर से बरसे और आज जो तू मुकाशफा का जो मुकाशफा की किताब में जो है तो भेद हम पर खोलना चाहता है, ऐ बाप अपनी बंदी पर खोल और यहाँ कर, ताकि हम भी उन सब उस भेद के वसीला से बाप हम भी अपनी जिंदगी में दावन जो तू हमारी जिंदगी में लाना चाहता है दावन वो हमारी जिंदगी में आते चले जाएं, दावन वो मुकाशफे हमारी जिंदगी में खुलते चले जाएं। तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ हो। Yes, यीशु के Lord. नाम से ये दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। Amen. 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 God bless you, Sister Surya. खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद अपने नाम अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे और खुदा उनकी हजूरी, खुदा उनका मज़ा, खुदा उनका हाथ हमेशा आपके ऊपर बड़ा रहे और आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रस्तिश के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा कि खुदावंद आज तूने फिर से हमें इकट्ठा किया कि खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दें, खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करें अपनी किरदार से, अपनी बातों से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदावंद जिसके तू लायक है। खुदावंद आज जब हम इस पानी को पिएं, जब इस रोटी को लें तो खुदावंद हमारे बदन, हमारी जिंदगियां तब्दील होती जाए, हम पहले जैसे न रहे खुदावंद। हम हमारे अंदर से खुदा वो सारी नाराजगी, वो सारी बातें, जो वो चीजें जो तुझे पसंद नहीं, हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों के अंदर से, हमारे किरदार के अंदर से वो निकलती जाए और खुदावंद जो तेरी तरफ से बातें हैं, जो तेरी तरफ से
आदतें हैं, नेमतें हैं, खुदावंद उसके लिए हमारे लिए आसमान खुल जाए खुदावंद खुदा। और खुदावंद हमें इन पाकरू की नेमतों से, पाकरू के फलों से, इन 7 रूहों से तू खुदावंद हमें भर दे, ताकि खुदावंद यीशु ताकि खुदावंद बाप हम यीशु की मानित बनते जाएँ, ताकि हमारे अंदर कोई दाग धब्बा, कोई झुर्री बाकी न रहे खुदावंद। हम दुनिया की मुश्किलों में, परेशानियों में फँसे न रहें खुदावंद। दुनिया के कामों में फँसे न रहें खुदावंद। हमारी आँखें हमेशा तेरी तरफ लगी रहें, हमारी कान खुदावंद हमेशा तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तरसते रहें। जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है खुदावंद, इसी तरह हमारी रूह भी तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए तरसती रहे हो खुदावंद खुदा। और हम तेरे कलाम से अपने आप को भरते जाएं खुदावंद खुदा, ताकि हमारी प्यास जो है, हमारी रूह की प्यास बुझती रहे खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद। ताकि जब हम तुझसे भरते जाएंगे यीशु, तुझ में बढ़ते जाएंगे, तो खुदावंद हमारे अंदर ये दुनिया की फिक्रें, दुनिया की गंदगी, नापाकी हमारे अंदर से पाक और साफ होती जाए। हम खुदावंद दुनिया से अलग हों, हम निराले लोग हों, हमारे अंदर से खुदावंद दुनिया को, लोगों को खुदावंद यीशु तू नजर आए खुदावंद। हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से खुदावंद यीशु तू नजर आए खुदावंद। जिस तरह हमने सीखा कि हमारी पाकीज़गी की वजह से वो जो नरसिंगा है वो फूँका जाए, ताकि लोग देखें और कहें कि हाँ, ये निराले लोग हैं, ये मसीही लोग दुनिया से अलग हैं, ये मसीही लोग जो हैं, ये यीशु की मानित है खुदावंद खुदा। हम उस नरसिंगे को ज़ोर से फूँकते रहें, ताकि खुदावंद यीशु जब तू आए, जब खुदावंद तू नरसिंगा फूँके, तो खुदावंद हम हवा में उड़कर इकट्ठे होकर खुदावंद तेरे साथ उस जगह पे जा सके, उस तख्त तक पहुंच सके जो हमारे लिए खुदावंद तूने तैयार किया है। खुदावंद एक-एक को तैयार कर, एक-एक के चौगिर्द खुदावंद तेरे जंगजू, तेरे सूरमा फरिश्ते खुदावंद, तेरे ज़ोरावर फरिश्तों को, तेरे ब्रेक थ्रू फरिश्तों को यीशु के नाम से मांगती हूँ, ताकि हमारे सारे बंधन, सारी बीमारियां, खुदावंद सारी मुश्किलें, परेशानियां यीशु के नाम से खुदावंद खुदा हमसे दूर होती जाए। और खुदावंद हम तुझ में पवित्र होते जाएं, हम तुझ में बढ़ते जाएं खुदावंद, हम तुझ में छुपते जाएं, और खुदावंद हम नजर ना आए, बल्कि तू हमारी जिंदगियों में नजर आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे हम इस पानी को, इस तेरे लहू को जो अब तेरे लहू में तब्दील हो गया है, हमारे बदन के अंदर जाए, हमारी नस नस में खुदावंद खुदा वो जो गंदगी है, नापाकी है, यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। और खुदावंद ये शिफा बख्श लहू जो है हमारी जिंदगियों में, हमारे रूह बदन जान में खुदावंद खुदा शिफा को, रूहानी और जिस्मानी शिफा को लेकर आए। जब हम इस रोटी को खाएं, तो हमारे बदनों के अंदर से सारी गंदगी, नापाकी, गुनाह, गलाजत यीशु के नाम से निकलता जाए खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद जो हम रोज बरोज तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे मसा की वजह से खुदावंद खुदा, तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदावंद हम इब्लीस के सर को खुदावंद खुदा, तेरे जोर से, तेरी कुदरत से, तेरी ताकत से रोज उसके सर को कुचलते जाएंगे यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ यीशु के नाम से खुदावंद। तेरे जोर से हम इब्लीस के सर को कुचलते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा हम, हमारे अंदर खुशी, तेरी शादमानी, तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान, तेरी पाकरू की नेमतें, पाकरू के फल हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को लें। जी, हम काशवा की किताब, उसका पहला चैप्टर ही हम उस पे थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। और हमने थोड़ा-थोड़ा ये जो था खुदावंद यीशु मसीह का रोब जो, और चिरागदान और आँखों के बारे में कल थोड़ी-सी बात की थी। तो अभी आँखों का थोड़ा-सा रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा हम वो पढ़ के फिर आगे चलते हैं कि
हमने थोड़ा सीखा था कि खुदा यीशु मसीह की आंखें जो थी वो शोले की मानिंद थी, और हमने ये सीखा कि ये इसका जो एक मतलब है, मीनिंग है, हम क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है तो बीच में जो वर्सेस होंगे वो पढ़ेंगे। हमारे साथ अरूसा है और माया है ना? तो जो बीच में वर्सेस होंगे वो पढ़ेंगे, चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो हमने कल इस पे थोड़ी बात की थी, यीशु मसीह की जो आँखें हैं कि वो शोला की मानित हैं, और हमने देखा कि इसका मतलब है कि खुदावंद से कुछ भी छुपा नहीं। खुदावंद की आँखें जो हैं ऐसी रोशन हैं कि चाहे अंधेरा है, चाहे कहीं पे भी हैं, वो हमें देख सकती हैं। हम उससे छुप के कोई गुनाह, कोई गलती, कोई खता जो है नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खुदावंद को वो सब पता है ना? कोई गंदा काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बदगोइयाँ कर रहे हैं, है ना? या हरामकारियाँ, ज़िनाकारियाँ कर रही हैं, किसी नशे में हैं, कहीं पे भी हम छुप के कर रहे हैं, जैसे कह लें घुप अंधेरा होगा, वहाँ पे भी खुदावंद जो है हमें देख सकता है। उसकी आँखें जो हैं ऐसी रोशन हैं कि जैसा मर्ज़ी अंधेरा होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। ये अंधेरा जो है, ये कह लें हमारे लिए, हमें रोशनी की ज़रूरत है। वो तो खुद रोशन है ना? वो उसकी आँखें जो हैं वो रोशनी है, वो शोले की मानित जो हैं, वो चमकती हैं। इसलिए उसे किसी चीज़ की लाइट की ज़रूरत नहीं है ना? तो हम उससे छुप के हमारे दिल में जो कुछ है या हमारे ज़हन में जो कुछ चल रहा है, हम उससे छुपा नहीं सकते, हम उससे भाग नहीं सकते। तो कुछ भी गुनाह है, खुदावंद उसको जानता है ना? तो ये मुकाशफा जो है ये इस तरह कह लें, ये जो पहला चैप्टर है, इसमें खुदावंद जो है वो खोल रहा है कि खुदावंद की आँखें जो हैं, वो हर जगह देख रही हैं। कोई अ, यानी गंदा ख़्याल या गंदे जो है वो हमारे अ, हम उसमें रह नहीं सकते, या फिर हम ये, क्योंकि जलाली हम यीशु के बारे में सीख रहे हैं। ये पहला जो चैप्टर है मुकाशफा की किताब, रेवलेशन की किताब जो पहला चैप्टर है, इसमें हम जलाली तौर पे खुदा यीशु मसीह को देख रहे हैं। यानी यूहन्ना अरफ ने जब देखा मसीह को, खुदाम यीशु मसीह को, तो जैसे उसने पहले देखा था जब खुदाम यीशु मसीह को कह लें सलीब पे चढ़ाया था, और उस सूरत में देखा था। लेकिन अब जब इस रोया में खुदाम यीशु मसीह को वो देख रहा है, तो उसने जलाली तौर पे देखा है। यानी और ये सारा कुछ वो बयान कर रहा है कि उसकी आँखें ऐसे थी, उसके बाल ऐसे थे, यूहन्ना अरब जो है। तो हम इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं कि जो उसकी आँखें थी, जो शोले की मानी थी, उसका क्या मतलब था, है ना? और जो उसके बाल थे, कल हमने थोड़ा सीखा कि वो उसकी कदीम याम को पेश करते हैं कि यानी वो शुरू से था, यानी वो बुज़ुर्ग खुदा है और वो हिकमत से भरा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह, है ना? तो ये कल हमने थोड़ा सीखा था, तो आज आँखों के बारे में थोड़ा-सा और इस पे बात करते हैं कि अरूसा आप निकालना मुकाशफा की किताब, रेवलेशन की जो बुक है, इसका 22 चैप्टर और उसकी 15 आयत, जिससे हमें पता चलता है कि यानी आँखें उसकी हर एक चीज़ को देख रही हैं। आप छुप के सोचते ही हैं अपने ज़हन में, तो खुदावंद को वो भी पता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ है, तो खुदावंद जो है वो असल में इस भेद को खोल रहा है कि अगर तुम लोग ये कर रहे हो, तो तुम नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकते। 22 चैप्टर उसकी 15 आयत पढ़ना, जी जी अरुषा। जी। मगर कुत्ते और जादूगर और हराम का और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने बाहर रहेगा। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल
اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہاں جی بس تھینک یو. ہاں جی بس یہ ہم نے یعنی جو آنکھوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں جو ہیں کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، جو ہمارے دل میں چل رہا ہے، جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح سب دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، شعلے کی مانند چمک رہی ہیں، شعلے کی مانند جل رہی ہیں، اور وہ اس جو ہمارے دل میں ہے، یعنی گناہ ہے یا گندگی ہے، ناپاکی ہے، اگر ہمارے اندر ہے، ہماری گندی سوچیں ہیں، گندی باتیں ہیں، اور ہمارے دل میں بھی جو کچھ ہے، جو گناہ ہے، تو ہم یہ جو ابھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ کتے ہم نے تھوڑا سیکھا تھا کہ یہ جو بیک سلائڈر ہوتے ہیں، یعنی جو خداوند کے ساتھ پہلے چلتے ہیں پھر چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہے نا، برگشتگی، تو یہ لوگ یعنی کتے اس چیز کو بھی کہلے پیش کرتے ہیں، یعنی ایک اسپرچولی کہلے میننگ ہے۔ جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ کتا جو کیا کرتا ہے، اپنی الٹی کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو دوبارہ سے مطلب کھا لیتا ہے، یعنی کچھ چیزیں جو ہم نے چھوڑی ہوتی ہیں خداوند کے لیے، تو پھر سے وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے کہلیں جھوٹ بولنا یا شراب پینا یا گالیاں دینا، ہے نا، تو ہمیں ان کو چھوڑ کے پھر سے شروع کر لیتے ہیں، تو یہی کتے کی نیچر ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے بھی جو نیچر والے لوگ ہیں، یعنی ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نئے یروشلم میں اس طرح کے لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ کتے، جادوگروں کا تو آپ سب کو ہی پتہ ہے نا، اور حرام کار ہم نے سیکھا تھا کہ نہ صرف جو جسمانی طور پہ حرام کاری کرتے ہیں، بلکہ جو روحانی طور پہ حرام کاری کرتے ہیں، یعنی ہم خدا کو پورا ٹائم نہیں دیتے اور دوسری چیزوں کو، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو، ہسبینڈ کو، جاب کو، فون کو، یا کسی بھی چیز کو، یعنی ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو اصل میں وہ حرام کاری ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے روحانی طور پہ کسی اور کو ہم نے جیسے کہہ لیں پہلا درجہ دے دیا، اور یہ روحانی طور پہ ہم حرام کاری کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ لوگ بھی کیا ہے، نئے یروشلم میں خداوند کی بادشاہی میں، یہ کہہ لیں گندے لوگ جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ خونی جو ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ سارے لوگ کیا ہیں، جو گندی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے لوگ کیا ہے، یہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ وہ کیا ہے، وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو اصل میں کیا ہو گیا، ہم گر گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم نے جو ہے اپنی سوچوں کے اوپر فتح نہیں پائی، ہم کہہ لیں کہ اس فضل سے گر جاتے ہیں جو خداوند نے ہمارے اوپر کیا، اور ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو خداوند جیسے کہہ لیں ان کے اوپر یہ مکاشفہ کھول رہا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ مرضی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہم جب ریپچر ہوگا، جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پہ آئے گا تو ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک جیسے کہہ لیں خوش فہمی، غلط فہمی جو ہے، یہ خداوند یہ مکاشفہ جو ہے، یہ ایک بھید جو ہے ہمارے اوپر کھول رہا ہے کہ میری آنکھیں ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، جو تمہارے دل میں ہے، خیالات ہیں، جو تمہارے ذہن میں ہیں، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، تب ہم بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کیا ہے اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہے، پھر ہم جیسے کہہ لیں دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا دوبارہ سے خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ کرتے رہیں گے، ہاں جی، شرابہ بھی پی لیاں، پارٹیاں بھی کر لیاں، سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم بھی ہوا میں اڑ کر بادلوں پہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے۔ تو خداوند جو ہے
ये एक कह लें रेवलेशन जो है हमारे ऊपर खोल रहा है कि मेरी आंखें जो हैं वो तुम्हारे हर गंदे काम को, गुनाह को देख रही हैं, है ना? और जो गुनाह कर रहा है इसका मतलब है कि वो खुदावंद जो है वाज़िया कर रहा है कि वो नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए ये एक आंखें जो हैं खुदावंद की जो शोले की मानी चमक रही हैं वो इस चीज़ को भी पेश करती हैं, है ना? तो ये कम से कम अ, बाहर सारे मसीहियों को नहीं तो कम से कम जितने ग्रुप में मैं चाहती हूँ कि उन सबको ये बात कह लें खुली हो उनके आगे, उनको पता हो कि हम अगर कर रहे हैं ये सब कुछ तो आप ये ना सोचें कि जब रैप्चर होगा तो आप जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे या इस अ, तैयारी में अगर हम दुल्हन के तौर पे मरे हैं तो हमारे बदन जो है उस वक्त तब्दील होके तो हम उस रैप्चर में खुदावंद के शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये भेद जो है खुदावंद हमारे ऊपर खोल रहा है कि वो उसकी आंखें जो हैं वो शोले की मानद शोले की मानित है, आग के शोले की मानित है ना? तो इसलिए ये भेद हमारे ऊपर खुला होना चाहिए। और फिर आगे जो आयत है जिसमें हम देखते हैं कि उसके जो पाँव हैं वो खालस पीतल के से हैं, जो भट्टी में तपाया हुआ है। जो खुदाम यीशु मसीह के पाँव हैं वो किस खालस वो उसको क्या कहते हैं? पीतल के हैं, खालस पीतल के हैं, वो किस चीज़ को पेश करते हैं, है ना? तो ये जो है यानी खालस पीतल जो है या पाँव जो हैं मेरा ख़्याल एक दिन हमने पहले भी बात की थी कि पाँव यानी जो खड़े हैं, एक किस्म का ये जैसे कह लें खड़े हो जाते हैं या जैसे हमने कोई भी काम करना हो तो हम खड़े हो जाते हैं या अपनी जगह से कह लें कि मैं नहीं हटूँगा और हम खुदावंद में जैसे कह लें कायम रहने की कोशिश करते हैं या डट जाते हैं किसी काम के लिए कि नहीं हमने जो है ये काम करना ही करना है और हम तैयार हो जाते हैं। तो ये खड़े होने का ये भी मतलब है पाँव जो है और जो खालस पीतल है उसका मतलब है कि जो भी फैसला होगा वो अदलो इंसाफ से होगा यानी जो भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पेश कर रहा है कि वो जो भी फैसला करेगा वो अदल से होगा। वो ना कोई ये नहीं कि ये मेरा कोई जानने वाला है, ये मेरे बहन-भाई हैं, तो मैं इनके साथ रियायत करूँगा, तरफदारी करूँगा और जो मेरे जानने वाले नहीं हैं या कह लें अमीर हैं या कुछ ऐसे हैं, है ना? तो मैं उनको जो है वो उनको उनकी तरफदारी करूँगा। तो खुदावंद जो है ये हम पे ये जैसे कह लें ये मुकाशफा जो है वो खोल रहा है कि उसके फैसले जो हैं वो अटल हैं, उसके फैसले जो है अदलो इंसाफ से किए जाते हैं। किसी के साथ वो रियायत नहीं करता, किसी के साथ तरफदारी जो है वो खुदावंद जो है वो नहीं करता। तो इसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 63 चैप्टर है और 3 आयत। माया है हमारे साथ? माया की है महलाज ड्यूटी है ना? माया यशायाह हाँ यशायाह 63 चैप्टर और उसकी 3 आयत जिसमें हमें मिलता है कि खुदावंद जो है अदलो इंसाफ से जो अदालत है वो करेगा और वो जो फैसला करता है वो अटल होता है, वो किसी के साथ रियायत नहीं करता। यशायाह की किताब हाँ जी उसका 63 चैप्टर उसकी 3 आयत। ठीक है दी पढ़ती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो अकेले ही हौद में दाके रोंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। सिर्फ 3 नदी नहीं आगे भी पढ़े 6 तक मेरा पढ़ ले। ठीक है। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का
वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ माया। ओके, सुमीना, आप उर्दू में हाँ जी, पढ़ा? हाँ हाँ जी। पढ़ा उर्दू में। 63, हाँ, यशायाह 63 उसकी 3 बार। 3 मैंने आयत। तना, हाँ जी, 3 आयत, 63 बार 3 आयत। मैंने तनहा तहा अंगूर हौस में रूंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई न था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा, अपने जोश में उनको रोंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। मैंने निगाह की और कोई मददगार ना था। मैंने तजब किया कि कोई संभालने वाला ना था। बस मेरे ही बाजू से निजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने कहर से लोगों को लताड़ा और अपने गजब से उनको मदहोश किया और उनका खून जमीन पर बहा दिया। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये देखें, मतलब कुछ लोग ज्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत सारे मसीही ये कहते हैं, नहीं खुदा ते बड़ा शफकत ना परया है, प्यार मोहब्बत ना परया है ना, वो हमें माफ कर देगा। हाँ, वो माफ कर देगा, लेकिन अगर आप तौबा करेंगे, क्योंकि वो यही टाइम है जमीन पे है कि हम माफी मांगे, तौबा करें, और जो कुछ भी, और ये देखे लिखा हुआ कि जो उसके खून के खरीदे हुए हैं, है ना, ये दुनिया की अभी बात नहीं हो रही। तो अगर वो खुदावंद के साथ, जैसे कह लें, वफादारी से या उसके हुक्मों पे अमल नहीं कर रहे, तो उनकी बात हो रही है कि खून जो है उनका बहाया जाएगा जमीन बाहर पर। और जमीन खुदावंद पर। क्या, हाँ, और खुदावंद क्या है, कहर में और गजब में उठेगा और क्या करेगा, ये सब कुछ करेगा। कौन करेगा? खुदावंद यीशु मसीह करेगा। तो इसलिए कुछ जो हैं वो यानी ये सोचते हैं, तो ये खुदावंद, मैं कहूंगी कि उनके ऊपर ये मुकाशफा जो है खोल रहा है कि मैं अदलो इंसाफ से यानी जो फैसले हैं या अदालत जो है करता हूँ, और मेरे फैसले अटल होते हैं, या मैं डटा रहता हूँ। जो यानी कह लें, मैंने सही जो फैसले हैं या इंसाफ के जो फैसले हैं वो मैं करता हूँ, तो फिर मैं रियायत नहीं करता। अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा जो है उसको मिलती है। और अगर वो कह लें कि एंड तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, है ना, तो फिर क्या है, ये वाला जो आखिरी दिन में ये क्या है, खुदावंद इंतकाम लेगा। खुदावंद जो है उनको सजा जो कह लें कि देगा, और कौन देगा? खुद खुदा, इस खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए ये एक मैं कहूँगी कि एक जो मुकाशफा है, खुदावंद जो है इसके ज़रिए खोल रहा है कि वो क्या करता है, वो अटल है, यानी या डटा हुआ है, वो खड़ा हो गया, पाँव खालस पीतल के से हैं, है ना, यानी वो जो फैसले करता है वो अदल और इंसाफ से करता है, और वो उस पे कायम रहता है, वो डटा रहता है। तो इसलिए हम जो हैं, यही हमारे पास टाइम है, यही वक्त है कि हम जो हैं जो कह लें कि अगर क्योंकि एक जगह लेगा, मेरा ख्याल है आप निकालना सुमीना, पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 11 आयत में मेरा उसमें लिखा है कि खुदावन की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो क्या है, बदी को देख नहीं देख नहीं सकती। सकती। हाँ, मेरा हाँ जी, ख्याल है शायद। पहला हाँ जी। ग्रंथियो उसका 5 बाब उसकी 11 आयत। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई अच्छा अच्छा, हाँ, राम पढ़े। की, हाँ, भाई 5 कह बाब कर, 11। हाँ जी, हाँ, 11 आयत है, हाँ जी। ओके पढ़ो। भाई कहकर हराम कार या लालची या बुत परस्ती या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता
क्या ऐसा नहीं कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा का हुक्म करता है। खुदा हुक्म करता है, बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। हाँ जी, ठीक है। तो यही ये है। देखें, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, हाँ। हम्म, तो खुदावंद ये बिल्कुल जैसे कह लें कि वाज़िया कर रहा है कि जो इस तरह के लोग चल रहे हैं हरामकारी में, हम्म, लालची हैं, बुत परस्ती है, गाली देने वाले हैं, शराबी हैं, है ना? हम्म, ज़ालिम हैं। तो हम्म, खुदावंद पौलुस रसूल के ज़रिए खुदावंद बात कर रहा है कि उनके साथ सोबत ना रखो। उनसे हम्म, मेल-जोल जो है वो नहीं होना चाहिए, हमारा जो है। यानी हम्म, ये बाहर वालों की बात नहीं हो रही, यानी गैर कौमों की बात नहीं हो रही। हम मसीही जो आपस में, आगे हम्म, आपको पता है कि मसीहियों के भी दर्जे हैं, है ना? एक तो दुनिया की बात होती है, लेकिन मसीही जो हम एक चर्च है, हमारे अंदर भी कुछ लोग जो हैं इसी 5वें चैप्टर की ही मेरा ख़्याल है, पता नहीं मेरे ख़्याल दूसरी आयत में शायद लिखा हुआ है हम्म। और कि तुम पौलुस, अफसोस तो, हाँ ये लिखा, मैं पढ़ देती हूँ, चलो। अच्छा, और अच्छा। तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। हाँ, हाँ, इससे पहली जो आयत है उसमें लिखा हुआ है कि अपने बाप की बीवी को रखते हो। तो ये कौन हाँ, रख रहे हैं या हरामकारी कौन कर रहे हैं? हमारे अंदर ही जो मसीही हैं, वो ये काम कर रहे हैं। जो हम्म, मसीह में आके भी ये काम कर रहे हैं, तो खुदावंद कह लें उनसे ये बात कर रहा है कि मैं जो हम्म, है जब फैसला करूँगा या अदालत करूँगा, तो मेरे फैसले जो हैं वो कह लें अदल व इंसाफ से होंगे। वो किसी के साथ मैं रियायत नहीं करूँगा कि अब वो साथ एक बंदा हरामकारी भी कर रहा है और साथ वो दुआएँ भी कर रहा है, शायद चर्च में बड़े काम कर रहा है ना? तो खुदावंद कहे कि हाँ जी, ये मेरा बंदा थे, चलो ये काम भी बड़े कर रहे हैं तो मैं इसको माफ़ कर दूँ, है ना? जब तक वो खुद माफ़ी नहीं माँगेगा, तौबा नहीं करेगा, तो खुदावंद जो है वो उसके साथ रियायत जो है वो नहीं करेगा। खुदावंद के फैसले जो हैं अटल हैं, या वो अदल व इंसाफ से करता है। तो ये जो पीतल के क्या कहते हैं पाँव हैं, वो इस चीज़ को पेश करते हैं। ख़ालिस पीतल के जो पाँव हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के अदालत को या अदल व इंसाफ को, जो उसके फैसले हैं उनको पेश करें कि वो कायम रहता है, वो अ, यानी रियायत नहीं करता, है ना? तो ये ज़रूर हम मसीही जो हैं, हमारे ऊपर ये मकाशफ़ा जो है, ये भेद जो है, वो खुला होना चाहिए। और फिर इसी का जो एक दूसरा हिस्सा है क्या, कि उसकी आवाज़ जो है वो ज़ोर के से पानी की सी है ना? ये भी जो है खुदावंद की जो आवाज़ है, वो ज़ोर के से पानी की सी है। वो इस चीज़ को पेश करती है कि खुदावंद जो है कुदरत और हशमत वाला खुदा है। ये हमें मिलता है, जैसे कह लें ये कह लें भेद जो है ज़बूर 29 उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं हम्म, कि खुदावंद की आवाज़ जो क्या है हम्म, ज़ोर के से पानियों की सी है, और पानी वो सी क्या है। है कुदरत से हम्म, 29 हाँ जी, ज़बूर 29 उसकी 3 आयत। ओके। खुदावंद की आवाज बादलों पर है, खुदाई जुल जलाल गरजता है। खुदावंद दलदल बादलों पर है। खुदावंद की आवाज में कुदरत है, खुदावंद की आवाज में जलाल है। खुदावंद की हाँ आवाज जी, हाँ जी। दीवारों को तोड़ डालती है। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। आगे पढ़ें। प्रेज़ गॉड। बल्कि खुदावंद लबनान के दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको हालेलुया। बछड़े की मानद, हालेलुया, लबनान और सरयून को जंगली बछड़े की मानद खुदाता है। खुदाम की हुँ। आवाज आग के शोलों को चीरती है। खुदाम की आवाज हालेलुया। हाँ, बियाबान को बियाबान हिला को हिला देती है। दे। हालेलुया। खुदावन हालेलुया। कादूस के बियाबान को हिला डालता है। खुदाम की आवाज से हन्नियों के हमल गिर जाते हैं। हालेलुया। वो जंगलों को बेबर्क कर देती हैं। यस लॉर्ड। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावन हालेलुया। तूफानों के वक्त तक नशीन था। हालेलुया। बल्कि खुदा हुँ। हमेशा तक नशीन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद अपनी हालेलुया। उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन, आमीन, अभी हालेलुया। खुदावंद की आवाज़ क्या है? बादलों पर है, यानी कि पानियों हाँ। पर है। पानियों की हम्म, तरह है। खुदावंद हम्म, की आवाज़ जो क्या है? कुदरत वाली है। तो हम्म, इसलिए ये जो एक भेद जो है, ये भी हमारे ऊपर इस तरह खुलता है कि खुदावंद की आवाज़ से, ये जो अभी हमने सारा चैप्टर पढ़ा, हम्म, है ना? वो खुदावंद की आवाज़ जो है,
उसकी कुदरत से, उसकी हशमत से क्या होता है कि उसकी आवाज जो है पानियों की तरह आती है, जोर के पानियों की तरह हमें आती है। और अगर हम जो मसीही हैं, खुदा के खादम जो हैं, अ, एक और हवाला इसको पढ़ते हैं, अ, आप निकालना, मुकाशफा 14 बाब और उसकी 2 आयत। और अगर यानी ये खुदावन की आवाज है, और अगर खुदा के खादम या हम जो मसीही हैं वो भी खुदावन के साथ इस तरह चलेंगे जिस तरह पाकीज़गी में, या जिस तरह हम सब कुछ सीख रहे हैं, तो तब क्या होगा, हमारी भी आवाज से। हाँ जी, पढ़ना 14 हाँ जी, बाब उसकी 2 आयत। 2 आयत। हाँ। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसी बरबत नवाज बरबत बचाते हों। हालेलुया। हालेलुया। आगे। हाँ जी, तो ये, हाँ जी, ये उन लोगों की यानी आवाज होगी, जैसे ये जो कहते हैं, ये खुदावन के जो लोग हैं, या बरे के जो पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, ये उनकी आवाज है। यानी हम भी जब खुदावन यीशु मसीह के साथ उसकी कह लें पाकीज़गी में, उसके हुक्मों में हुक्मों पर अमल करने वाले होंगे, तो जो सहून के लोग हैं, यानी सहून क्या है, जहाँ खुदावन का तख्त लगा हुआ है, तो हमारी बुलाहट क्या है, हमारी कॉलिंग कहाँ की है, खुदावन के तख्त तक की है ना। तो ये देखें, मेरे ख्याल थोड़ा सा इस पिक्चर में थोड़ा सा वाज़िया हो गया, बादल हैं, बिजली है, पानी है, तो हम भी जैसे कह लें कि जैसे हमारी बुलाहट क्या है, यहाँ तक की है, तख्त तक की, तो हमारी आवाज से भी यह क्या है कि हमारी आवाज में भी ये कुदरत जो है, ये ताकत जो है वो होगी, जो है सहून पे खड़े हैं खुदावन के लोग। ये 14 चैप्टर में हमने इसकी पहली अगर आयत से पढ़ें तो हमारी आवाज में भी वही कुदरत, वही ताकत जो है होगी। तो अगर हम देखें, क्योंकि क्या है, हम मसीह की मानिद बन रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी जो कॉलिंग है बेटे की है, यानी खुदा बाप का, खुदा यीशु मसीह बेटा है, तो हमें भी उसने बेटे बेटियां कहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी आवाज में वही कुदरत, वही हशमत, वही ताकत हो, वही जोर हो, तो जैसे अब भी कल ही मैं आपको बता रही थी कि वो एक, मैं कहूंगी कि छोटा बच्चा ही, लाइक जैसे कर ले 20-21 साल का था, तो उसने कहा कि बारिश जो है वो रुक जाए, और वो बारिश वहीं पे थम गई थी। तो किससे, हम यानी इंसान बोल रहा है, लेकिन हमारे अंदर कुदरत किसकी है, ताकत किसकी है हमारी आवाज में, वो खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। तो अगर और भी बहुत सी गवाहियां आप सबको ही पता है तो यानी हम जब बोलते हैं तो वो काम जो है वो हो जाता है, ईमान से बोलेंगे, या जैसे हमें खुदा ने क्या किया है, वो कुदरत दी है, वो ताकत दी है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, है ना। तो क्या करते हैं, हम इब्लीस के सर को कुचलते हैं। तो इसलिए ये जो पानियों की आवाज है, या जोर के पानियों की आवाज है, उसका जो मतलब है वो है, ये है कि उसमें क्या है, कुदरत है, वो ताकत है, वो हशमत है, वो जोर है ना। तो यही हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसलिए एक मैं कहूंगी कि छोटी छोटी बात जो है खुदावंद हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये भी तेरे अंदर होना चाहिए, ये भी तेरे अंदर होना चाहिए। और उसके जो मीनिंग है वो खुदावंद हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी वो ट्रेनिंग कर रहा है, या हमें वो तैयार कर रहा है ना। तो इसीलिए ये देखें कि छोटी छोटी बात जो है, ये जो मुकाशफा है, जो खुदाम यीशु मसीह का मुकाशफा है, वो अपने बंदा यूहन्ना आरफ से जैसे कह लें उसके जरिए बातचीत हमारे साथ कर रहा है ना, कि वो चाहता है कि ये भी हमारे अंदर से निकल जाए, ये भी गंद है, ये भी गंदी बात है, तो इसलिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा यीशु है, वो चाहता है कि मेरी बीवी भी वैसी ही बने, क्योंकि हम क्या है, उसके अंदर से निकले हैं। जैसे आदम के अंदर से हवा जो थी निकली थी, निकाला था खुदाम बाप ने, इसी तरह हम खुदाम यीशु मसीह की पसली में से निकले हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, तो हमें भी उसकी मानिद बनना है ना। हाँ जी, तो अगली आयत जो है वो कि उसके जो मुंह है दाहिने हाथ। वो 2 धारी तलवार है। हाँ जी, ये सितारों का ये महल इकट्ठा हम करेंगे।
तो हम तलवार का देखते हैं कि उसकी क्या है, 2 धारी तलवार है। हाँ, पता नहीं कहाँ। चलें ठीक है, वो मिली नहीं मुझे। हाँ जी, 2 धारी तलवार और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, है ना? इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। ओहो, टाइम तो हमारा हो गया है। ओके, चलें ठीक है नहीं कि नहीं, अभी ये टाइम है। थोड़ा सा ही है। ओके। ओके। दाहिने हाथ में जो सितारे हैं वो 7 कलीसियाओं को पेश करते हैं, 7 फरिश्तों को पेश करते हैं। यानी इसका जो मतलब है खुदावंद के दाहिने हाथ में, और यानी ये 7 सितारे जो हैं वो 7 कलीसियाओं को और 7 फरिश्तों को पेश करते हैं। और दाहिने हाथ का मतलब है कि खुदावंद के हाथों में क्या है, महफूज है हम। खुदावंद के हाथों ने हमें संभाला हुआ है कलीसिया को। और कलीसिया में जो खुदावंद के खादम हैं, यानी ये जो हम देखते हैं कि सितारे जो हैं वो क्या हैं, असल में खुदा के खादम हैं, जो वहाँ पे हम कह लें कि पास्टर हैं, जो खुदावंद के वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। उस चर्च को कह लें, उस कलीसिया को जो चलाने वाले हैं, वो किसके हाथों में है? खुदावंद के हाथों में। जैसे एक जगह हम में देखते हैं, क्या वो आयत है कि खुद हाकिमों के, बादशाहों के जो दिल हैं, क्या लिखा हुआ है कि वो खुदावंद के हाथों में है। वो जिस तरफ चाहता है उस है ना, पानी के नालों की तरह बहा देता है। तो बिल्कुल वो खुदावंद के खादमों की बात हो रही है कि खुदावंद के खादम जो हैं वो खुदावंद के हाथों में है। यानी हम क्या हैं, एक किस्म का क्या है, शहजादे और शहजादियां हैं, या बादशाह हैं, या हुक्मरानी। जैसे हमने थोड़ा पिछले दिनों सीखा कि हम करेंगे बादशाही, अभी नहीं हम कर रहे, लेकिन जब बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की शुरू होगी तब हम करें। और उस वक्त की खुदावंद बात कर रहा है। और खुदावंद के जो खादम हैं वो खुदावंद के हाथों में महफूज हैं। ये एक हमारे ऊपर भेद जो है वो खुला होना चाहिए, कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदावंद जो है हमारे साथ है, उसकी हजूरी जो है उसने हमें घेरा हुआ है। और जहाँ कहीं हम गिरते हैं, जैसे पिछले उसमें देखा था कि खुदावंद जो क्या है, चिरागदानों में फिर रहा है। तो जहाँ कहीं तेल कम है या कुछ भी जरूरत है हमें खुराक की, वो खुदावंद हमें यानी कलीसिया को और जो खुदा के खादम हैं उनको मुहैया करता है। वो वहाँ पे मौजूद होता है। यानी रूह के तौर पे, यानी जिसका कह लें अगर रूहानी तौर पे कहीं हम कमजोर हैं या जिस्मानी तौर पे भी जो हमें खुराक की जरूरत होती है या जो भी, तो खुदावंद क्या है वो पूरी कर रहा है। यानी इनके अंदर फिरने का जो मतलब था हमने पीछे सीखा है ना। तो हम यानी खुदा के खादम क्या हैं, खुदावंद के हाथों में है, दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ का आपको ये भी मेरा मतलब है ना कि जोर वाला, ताकत वाला, खुदावंद का कुदरत वाला जो हाथ है, उसमें क्या है, हम महफूज हैं। और 2 धारी जो तलवार है, उसके लिए हम एक हवाला पढ़ते हैं, इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत, जिससे हमें पता चलता है कि खुदावंद का कलाम जो क्या है, 2 धारी तलवार है। असल में ये उसकी बात हो रही है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 5 आयत, सॉरी नहीं 12 आयत। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत कि खुदावंद का जो कलाम है वो क्या है, 2 धारी तलवार है। अच्छा, इब्रानियों 4 बाब, हाँ जी, उसकी 12 आयत। 12 क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। आगे। और उस आगे, हाँ जी, पढ़ना। और उससे मुलाकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। हाँ जी, यानी खुदा के खादम जो हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं या जो मुश्किल है उनको या परेशानी है या जो उनके दिल के ख्याल हैं, खुदावंद जो है उनको जानता है। या खुदावंद जो है अगर बुरी सोचे हैं तब भी जानता है, अगर अच्छी है, यानी वो कोई तरक्की के काम या जो भी कह लें वो करना चाहते हैं कलीसिया में,
तो खुदावंद जो है अगर कई दफा सोचते ही हैं खुदा के खादम, तो खुदावंद उनकी जरूरत को कह लें पूरा करने के लिए वहां पे मौजूद होता है। तो इसलिए हमें जो खुदा के खादम हैं या हम कलीसिया जो हैं, हमें ये खुदावंद के ऊपर जैसे कह लें एक भरोसा होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि खुदावंद जो है उसने हमें संभाला हुआ है। खुदावंद जो है हमें कह लें गिरने नहीं देगा, और अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं या गिर जाते हैं तो खुदावंद का हाथ जो है, दाहिना हाथ क्या है, हमें जोर बख्शता है, हमें ताकत देता है और हमें फिर से उठा खड़ा कर देता है। और जब हम जैसे कह लें कल हम थोड़ी बात कर रहे थे कि दाऊद जैसे क्या करता था, खुदावंद का कलाम ही बोलता था, या उसने जो पहले अजीब काम किए होते थे, मौजूद किए होते थे, उनको बोलना शुरू हो जाता था कि ओ खुदावंद ने मुझे उस वक्त भी मुश्किल में से निकाला था। तो उसने वो उसकी कुदरत बयान करना शुरू कर देता था। तो इसलिए ये जो कलाम है खुदा का, वो क्या है, दो धारी तलवार है। वो बंद और गूदे गूदे को जुदा करके क्या है, गुजर जाती है। और हमारे अंदर जैसे कह लें हमारे जिस्म के किसी अज़ा में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसे कमजोरी आ गई है, तो खुदावंद का अगर हम कलाम बोलेंगे, जैसे बीमारी को क्या करेंगे, डांटेंगे, तो वो क्या करेगा, वो क्या है हमारे बदन के अंदर से निकल जाएगी, है ना। या कोई भी परेशानी है या बीमारी है, तो वो खुदावंद का कलाम क्या है, वो जिस्म के अज़ा को कह लें गूदे को और जुदा करके क्या है, अंदर से वो बीमारी को या परेशानी को या कोई ऐसी गंदी सोच है या नेगेटिव सोच है, तो वो क्या करेगा, खुदावंद का कलाम हमें आजाद करने की कुदरत और ताकत जो है वो रखता है। तो तलवार जो है वो जैसे कह लें कि वो खुदावंद के कलाम को पेश करती है ना। तो इसलिए हम जो है ना डरें ना घबराएं, और खुदावंद ने हमें अपने हाथों में कह लें कि संभाला हुआ है। खुदावंद जो है वो हमें गिरने नहीं देगा, है ना। तो इसलिए ये जो अ, तलवार है, दो धारी तलवार, वो इस चीज को पेश करती है, खुदावंद के कलाम को, और कि खुदावंद जो है हमें कुदरत रखता है, ताकत रखता है। जहाँ कहीं भी हमारे बदन के अंदर कुछ भी चल रहा है, सोचों में, दिल में, तो खुदावंद जो है हमें उसमें से निकालने की कुदरत और ताकत जो है वो रखता है ना। और फिर हम देखते हैं कि जो दुनिया है उसके पास 5 कह लें हिस्से हैं। यानी वो सिर्फ कह लें कि वो छूने के और चखने की, सुनने की, देखने की और सूंघने की उनके पास है। लेकिन हम जो हैं यानी मसीही जो हैं, खुदावंद ने हमें जैसे कह लें कि वो रो दिया हुआ है कि, या वो मुकाशफा जो है हमारे ऊपर खुला है कि हम क्या करते हैं, हम जो हैं रूह के वसीला से खुदावंद बाप की रूह के वसीला से क्या है, हमारा तल्लक जब खुदा से बन जाता है या रूह से बन जाता है, तो हम इनमें फ़र्क जो है दुनिया की और आसमानी चीज़ों की जैसे कह लें, उसमें जो है हमें फ़र्क जो है आ जाता है। लेकिन हाँ। दुनिया को जो है इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन हम जो मसीही हैं, जो खुदावंद की रूह की कह लें हिदायत से चलते हैं, उनका तल्लक जो है जब वो खुदावंद के साथ चलते हैं, तो हमारी सोचों ख्यालों का तल्लक हमारी जान से है। लेकिन जो दुनिया है उसका जो तल्लक है वो बदन से है। लेकिन हमारा जो तल्लक है खुदा के साथ, खुदा के रूह ने हमारा तल्लक जो है हमारा जैसे कह लें सोल का, हमारी जो है जान का तल्लक जो है खुदा बाप से बना दिया है। तो इसलिए हम जो हैं खुदावंद के लोग जो हैं, हमारा जो तल्लक है खुदा के साथ वो रूहानी तौर पे है। रूह से, जैसे रोमियो के खत में महलक रूह का रूह से मिलाप हो गया है ना। तो लेकिन दुनिया जो है उसकी ये वाली हिस्से जो हैं वो इस पे वो काम करती है, या इसकी वजह से वो सब कुछ समझती है या जानती है। लेकिन हम क्या हैं, रूहानी हैं। तो हम रूहानी चीजों की हमें समझ आती है। दुनिया को रूहानी बातों की समझ नहीं आती। हम जैसे कहते हैं ना, आसमान पे हमारा हिस्सा है या आसमान पे हमें ये चीज मिलेगी, उनको इस बात की कोई समझ नहीं आती, है ना। उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पता चलता। वो सब कुछ
कहते हैं कि दुनिया में ही है, दुनिया ची जी ऐशो कर लो, इशरत का क्या कहते हैं, अयाशी कर लो, तेरे ते कुछ नहीं मिलना। उनको आसमानी जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। वो दुनियावी लोग हैं, है ना? लेकिन हम क्या हैं? आसमानी लोग हैं, हम रूहानी हैं। तो हमारी जो हिस्स है जो ये यानी रूहानी तौर पे वो खुली है, या वो आंखें जो क्या है, रूहानी तौर पे हमारी आंखें जो हैं खुली हुई हैं। तो इसलिए हम जो है हमारी रूह, जो खुदावंद बाप की रूह हमारे अंदर है, या खुदावंद पाक रूह है, हमें आसमानी चीज़ों की और दुनियावी चीज़ों में से फ़र्क जो है पता चलता है। अ, इसलिए हम क्या हैं? रूहानी हैं। और जो खुदावंद का जो चेहरा चमक रहा है आफ़ताब की तरह, सूरज की तरह, वो इस चीज़ को पेश करता है। आप एक आयत निकालना ना, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 6 आयत, जिसमें हमें ये खुदावंद यीशु मसीह का जो फेस है, जो मुंह उसका चमक रहा है, उसके बारे में। दूसरा करंथियों 6 बाब हाँ जी, नहीं, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 6 आयत। 4, ओके राइट, हाँ जी, हम्म, ये लिखा है, हाँ इसलिए जी, कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवादार हो। आमीन। हाँ जी। तो उसका जो क्या है, चेहरे का चमकने का मतलब है कि खुदावंद का जो जलाल है वो चमक रहा था खुदावंद यीशु मसीह के जब फेस, जब शागिर्दों ने देखा आपको, वो जब मैं यूहन्ना और याकूब थे, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह का मुंह जो था वो चमक रहा था, खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन में तब्दील हो गए थे, है ना? तो हमारा भी जो एक जैसे कह लें दिल के ख्याल हैं, या जो हमारे जो दिल के अंदर जो कुछ चल रहा होगा वो हमारे चेहरे से नजर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह का राब्ता क्या है, या उस वक्त किससे खुदा से जुड़ा हुआ था, और खुदावंद जो था जलाली बन गया था, है ना? यानी उसके दिल और दिमाग, यानी सोचें जो थी वो क्या थी? खुदावंद के साथ जुड़ी हुई थी। तो उसके फेस से क्या है, वो चमक रहा था, वो सूरज की तरह कह लें चमक रहा था, आफ़ताब की तरह चमक रहा था। तो वो क्या था, उसके दिल और दिमाग यानी एक हो गए थे। उसकी कह लें अक्कासी कर रहे थे, या उसको दिखा रहे थे। तो हमारा भी या उसकी रास्तबादी जो थी वो अयां हो रही थी, या नुमायाँ हो रही थी, या आश्कारा हो रही थी उसकी रास्तबाजी के। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा जो है, अगर हम रास्तबाजी में, पाकीज़गी में, होलीनेस में चल लेंगे, और खुदावंद के साथ हमारा जैसे कह लें एक रूह हो जाते हैं, जब हमारा दिल और दिमाग की सोचें जो हैं एक हो जाती हैं, तो हमारे भी फेस से जैसे कह लें कि जो नूर है वो चमकना शुरू हो जाता है, या होगा जब हम आसमान पे जाएँगे। खुदावंद का जो जलाल है, वो हमारे चेहरे से नज़र आएगा लोगों को, है ना? तो इसलिए ये जो खुदावंद यीशु मसीह का जो चेहरा चमकना है, वो इस चीज़ को पेश करता है कि कई दफ़ा होता है हमारे दिल में कुछ चल रहा होता है, और हमारे ज़हन में कुछ चल रहा होता है। हम खुदावंद के साथ दिल से तो चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोचें जो हैं वो फ़िक्रों में, दुनिया की फ़िक्रों में जकड़े होते हैं। तो हमारा दिल और दिमाग एक नहीं होता, इसलिए हम जो है वो रास्तबाज़ी के काम, या वो पाक जो काम है वो नहीं करते, है ना? लेकिन जब हमारा खुदावंद के साथ राब्ता दिल और दिमाग, यानी सोचें और ख़्यालात जब हम एक हो जाएँगे, तो हमारे चेहरे से जो है वो नूर, जैसे कह लें मुकाशफा की आखिरी किताब आखिरी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम भी वहाँ पे चमक रहे होंगे। खुदावंद यीशु मसीह भी आफ़ताब की मानिंद चमक रहा होगा, और जो उसके लोग होंगे, जो उसकी दुल्हन होगी वो भी, जैसे ये खुदावंद यीशु मसीह, ये देखिए लाइट है ना, चमक रहा है, तो इसी तरह हम भी वहाँ पे चमकेंगे। ये 22 चैप्टर में लिखा हुआ है ना? तो ये चेहरे का जो चमकना है, ये इस चीज़ को पेश करता है कि हमारी सोचें और ख़्याल जो हैं, वो एक जैसे कह लें रूह में बंध गए हैं
खुदावन की रूह के साथ बंध गए और खुदावन का जलाल जो है हमारे यानी कलीसिया से जाहिर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो बहुत सारी कलीसियां हैं उसके अंदर खुदावन के जलाली काम जो है वो नहीं हो रहे, क्योंकि वो कुछ दुनियावी काम कर रहे हैं, कुछ जैसे कह लें आसमानी काम। तो वो एक जैसे कह लें उनमें फिर जलाली जो एक काम होते हैं, वो एक जो खुदाम का जो जलाल ही जलाल है वो नजर नहीं आता है ना। लेकिन जब हम दिल और दिमाग यानी सोचें और ख्याल जो हैं जब एक रूह में बंध जाते हैं हम खुदावन के रूह के साथ, तो फिर उस कलीसिया में उस बंदे के अंदर खुदावन का जलाल जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा ही बस कल हम रह गया है, तो बाकी हम कल थोड़ी बात करेंगे। तो खुदा मुझे भी और आप सबको बरकत दे और फजल दे कि हम ये जो कुछ सीख रहे हैं उसको उसके ऊपर अमल भी करें। तो बैक टू सुरैया, गॉड ब्लेस यू। आमीन, गॉड ब्लेस यू। ओ सुरैया नहीं है, तो अगर किसी के दिल में आ रहा है तो वो प्रेयर कर सकता है, नहीं तो फिर हम सुरैया नहीं करनी है। हाँ जी ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस। और बसीरा शंदजीना रे बेबी सीरा शंदजीना, और बसीरा शंदजीना रे बेबी सीरा शंदजीना रा रा रा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम तेरी स्ताइश हो। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला तेरी शफकत अबदी है, तू कहकर में धीमा और शफाफा में घनी है। खुदा उन तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे आसमानी बाप। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के मिल बैठ के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा उनको के खुदा। तूने हमें हर सांस बख्श दी खुदा ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे सुंदर कदमों में आ सके, तुझे सजदा कर सके, तुझे चूम सके खुदा। ये सांसें तेरी हैं खुदा, ये जिंदगी तेरी है खुदा, ये बदन तेरा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे आसमानी बाप। मेरे जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद, तेरी हम तेरी साज करते हैं खुदा। हर बात के तेरा शुक्र अदा करते हैं, हर नेमत के लिए, जिंदगी और तंदुरुस्ती और सेहत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तूने हमें ठाक खड़ा किया, तूने हमें हमें चंगा किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी, क्योंकि तूने हमें जिंदगी बख्शी। यीशु नासरी तेरा शुक्र अदा करती हैं। हालेलुया, रबा रबा सीरा शंता सीना री बीबी सीरा शंता सीना री 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 री। यीशु जी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बाप हम इस लायक नहीं थे, पर तूने हमें इस लायक बना दिया। तूने हमें अपने खून से खरीद लिया, तूने हमें अपने खून से पाक और साफ कर दिया, हमें धो दिया। यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी। तूने हमें अपनी हिकमत दी, अपनी फहम दी, अपना मकाशवा हम पर जाहिर किया खुदा, ताकि हम तेरी मान बनते जाए, हम पाक होते जाए, पवित्र होते जाए खुदा। अपने ग्रहों की माफी मांगे, तौबा करे खुदा। तू हर जगह मौजूद है खुदा, तेरी आंखें हर जगह देखती हैं खुदा। खुदा तू हमें हर बुरा से, हर बुरी बात से, हर बुराई से, हर गाली गलौज से, हर किस्म की बुराई से बचा खुदा यीशु नासी। जो तुझे बातें पसंद नहीं है खुदा, तू हम हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से दूर कर दे खुदा। खुदा तू जानता है खुदा, तू हर जगह मौजूद है खुदा। तेरी आंखें सब जगह पे लगी हुई हैं खुदा, तेरे से बात कोई भी पोशीदा नहीं है खुदा यीशु नासी। तू हमारा उठना बैठना जानता है, तुम्हारी सोचो ख्याल से वाकफ है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु नासी। तू हमें सारी गुनाहों से मैं माफ कर, पाक कर, अपने खून से धो दे यीशु जी, ताकि हम पाक से पाक होते जाए, पवित्र बनते जाए खुदा यीशु नासी। हम तेरी बादशाह में शामिल हो सके खुदा। खुदा अपने कलाम को, अपने मुकाशवा को हम पर और जाहिर कर और खोल खुदा, ताकि हम तेरी मान बनते जाए खुदा। जिस तरह तू चाहता है खुदा, हमें पाक कर, पवित्र बना खुदा, ताकि हम जब तू आए तो खुदा बातों में हम वाह में उठकर तेरा इस्तेमाल करें खुदा यीशु नासी के नाम से खुदा। तो हमें इस तौर पर बना दे खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं मेरे यीशु नासी। जिस तरह खुदा तेरे नाम, तेरी आवाज में कुदरत है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तेरी आवाज से नहीं हो कि हम गिर जाते हैं खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी। खुदा तो हमें इसी तौर पे बना दे खुदा। जब हम बोले तेरे कलाम बोले तो खुदा यीशु नासी वो काम होता जाए, क्योंकि खुदा तूने खुद कहा है, जब तुम ईमान के साथ तुम जाओ और मेरे नाम से सांपों और बिच्छों के सर कुछ लोग खुदा यीशु नासी के नाम से। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु नासी। हमें इस तौर पे बना दे खुदा, अपने चेहरे का नूर हम पर चमका खुदा यीशु। तेरा नूर चमके हमारी जिंदगी में, ताकि लोग जाने कि हम यीशु नासी के बच्चे हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं खुदा यीशु नासी। तूने हम अपनी कीमती खून से
खरीद रखा है खुदा, तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु नासी, आज के कलाम के लिए, आज की साइस्ताश के लिए, प्रस्तश के लिए तेरा शुक्र अदा करती मेरे खुदा। जितने भी तेरे सामने तेरी प्रस्तश की खुदा यीशु नासी, अपनी कुर्बानी पेश की, अपने होंठों की कुर्बानी दी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु। उन सबको तू बड़ी बरकत दे, बड़ा ब्लेस कर खुदा, अपने कलाम को खुदा तू और उन पर खोल खुदा, तेरे मकाशवा के भेद उन पर और खुल जाए खुदा यीशु नासी के नाम से, Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु नासरी के नाम से खुदा खुदा, ताकि तेरे नाम को और जलाल दे खुदा, तेरे पाखरू से भरते जाए, तेरे पाखरू की आग से भरते जाए खुदा। जब तेरे होंठों की कुर्बानी तेरे आगे पेश करे खुदा, उससे बंधन टूट जाए और जुए टूटते जाए, बंधन खुलते जाए खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा है हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ओ जीसस, जीसस तेरा शुक्र हो खुदा के खुदा, तू ही इस रब्बुल फाज खुदा है, तू लश्करों का रब है, तू इसराइल का कदूस है खुदा, खुदा तू मौजूद का खुदा है, तू करामात और फतवात का खुदा बाप है खुदा। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ से तमजीद करते हैं मेरे खुदा खुदा। हम जब जब खुदा हम गिरते हैं तो हमें उठा खड़ा करता है खुदा, तू बीमारों को चंगा करता है खुदा यीशु नासी। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ से तमजीद करते हैं, तू हर आजमाइश से हर परेशानी से तू बचाने की कुदरत रखता है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, हमारे पास तो लफाज नहीं तेरी शुक्रदारी अदा करने के लिए खुदा, तू इतनी शुक्रगुजारी के लायक है खुदा, तू इतनी मोहब्बत करने वाला खुदा है, तू प्यार करने वाला खुदा है खुदा यीशु नासी, जो तूने हमसे इतनी मोहब्बत की कि तूने अपना खुदा बाप तूने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर मान लाए लाख ना हमेशा की जिंदगी पाए। हम बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु जी, कि तूने हमारी गुनाहों की खातर, हमारी खताओं की खातर, हमारी बदकारियों की खातर, हमारी जनाकारियों हराम कारियों की खातर, हमारी बीमारियों की खातर, हमारी लानतों की खातर यीशु जी तू कुर्बान हो गया खुदा यीशु नासी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी, तूने हमारी हर जरूरत को पूरा करने की खातर तू कुर्बान हो गया, तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु जी। यीशु जी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं यीशु नासी। तू वो खुदा बाप है खुदावन, तेरे जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान पर ना जमीन पर, तू सब नामों से आला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। दुनिया के महज में बहुत सारे बूत है, पर हमारा खुदावन जिंदा खुदावंद है, जिसके आ जाने से हालात बदल जाते हैं खुदावन, मौजात हो जाते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे आसमानी, तू मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है खुदावन, तूने बोला तो खुदावन हो गया खुदावन, लाजर कब्र से बाहर आ गया खुदावन, तेरी आवाज में कुदरत है। हालेलुया, ओ यस जीसस, यस लॉर्ड जीसस, खुदावन तो में अपनी मान बना खुदावन, हम तो हमें से नजर आ खुदा बाप, खुदावन हम ऐसे ही होते जाए, हमें पाक करता जा खुदावन खुदा, खुदावन ताकि लोग जाने कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावन यीशु मसीह, अपने कलाम के मुताबिक हमें तैयार कर पाके होगा खुदावन, तुम्हारी मदद कर, हम पर रहम कर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे खुदावन, जहां जहां हम कमजोर हुए हैं खुदावन तुम्हें पाक कर दे, हमें ताकत दे, हमें तवन्नाई बख्श दे खुदावन यीशु मसीह, हमारी कमी कमजोरी को वो दूर कर दे यीशु मसीह, हमारी जिंदगियों से दूर होती जाए खुदावन, सारे रास्ते मार कर दे, मुश्किल आसान हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु जी हमारी मदद कर, हम पर रहम कर, एक एक जान पर रहम कर खुदा, जितने तेरे हजूर चुके हुए हैं खुदा, तुम्हारे खुदा तुम्हारी दिलों को जानते हैं खुदा, तेरे से तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है खुदा बाप। यीशु नासी तू हमारी दुआओं को सुन और हमारी मिन्नतों को कबूल कर मेरे यीशु जी, क्योंकि जिंदा खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, करने की कुदरत रखता है, हमारे हाथ तेरी तरफ उठे हुए, हमारी कमम कहाँ से आएगी, हमारी कमम खुदावन तू है खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु जी, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल, हमारी उम्मीद तू है, हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है मेरे खुदा यीशु नासी। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं मेरे यीशु नासी। तेरा शुक्र करती हूँ आज की खुदा सारी खुदा कलाम के लिए, तेरे मुकाशवे के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तूने अपना मुकाशवा हम पर खोला खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु नासी। और तू अपने कलाम के भेद हम पर जाहिर कर खुदावन, ताकि हम पाक होते जाए खुदावन, हम तेरी दुल्हन की मान तैयार होते जाए जिसका तू चाहते है खुदावन यीशु नासी।
हमें तैयार कर खुदावंद, हमारे बदनों में, हमारे बदन जान जैसे में कोई भी बुराई ना रहने पाए खुदावंद, हमारे खुदावंद खुदा कोई झुरी ना रहने पाए। जब तू आए तो खुदावंद हम पाक हो खुदावंद यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र अदा करती मेरे जिंदा खुदावंद खुदा मेहरबान रहम करने और तरस करने वाले खुदावंद और शफकत से भरे हुए खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तू हर एक को अपना फजल बख्श दे खुदावंद, ताकि हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए, हर एक आंख तुझे देखे खुदावंद यीशु मसीह, और तेरे कलाम पर यकीन रखे, ईमान रखे कि तू ही खुदावंद का खुदा है, तू ही इंसाफ करने वाला खुदा है खुदावंद, तू ही सारा जिंदा खुदावंद है। तेरी कब्र अभी यीशु में खाली है खुदावंद यीशु मसीह, और तुझ में ही जिंदगी है खुदावंद। जो तेरे पास आता है वो जिंदगी पाता है खुदावंद यीशु मसीह। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। हमें इस तौर पे तू सबको तैयार कर खुदावंद खुदा, हम तेरे कलाम की खुशखबरी दुनिया के कोने को तक पहुंचा सके खुदावंद यीशु मसीह। अपने नाम के वसीले से खुदावंद तुम्हारी मदद फरमा, किस तौर पे जो चाहते हैं पाकू हमारी मदद कर, जिस तौर पे तू चलाना चाहते हैं हम पाकू वैसे ही चले खुदावंद खुदा, हमारी मदद कर पाकू। तू हम सब पर रहम कर दे, रहम कर दे, अपने मुकाशवा के भेद हम पर और खोल मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, अपनी बंदी को तू बड़ी बरकत दे खुदा यीशु मसीह। अपनी तू बंदी को और तू खुदा जोर से इस्तेमाल कर, अपनी बंदी के खुदा खुदा तेरे उस पर अपने चेहरे का नूर उस पर जलवा कर फरमा खुदा, तेरे नूर से वो भरती जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तू और मुकाशवा के भेद उस पर जाहिर कर मेरे यीशु मसीह। अपनी बंदी को और तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि वो दूसरों के बारे से बरकत ठहरे खुदा। उसके किरदार से, उसके बोलने उठने बैठने से, बोलने चालने से, पहनने ओढ़ने से खुदा उसका खुदा तेरा जलाल उसकी जिंदगी से नजर आए खुदा, दूसरे के लिए बायस से बरकत बनती जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। उसके घराने को बड़ी बरकत दे, बच्चों को बड़ी बरकत दे, उसके शोहर को बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा हाथ उन पर बड़ा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, किसी चीज की कमी ना होने पाए उनके घर से यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनका घराना खुदा तुझ में बढ़ता जाए, कुव्वत जोर पाता जाए खुदा, और खुदा वो घराना तेरे लिए बायस से बरकत हो, दूसरों के लिए बायस से बरकत ठहरे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। यीशु के नाम को सारा जलाल मिलता जाए कि खुदा तू बादशाह का बादशाह, तू ही शहंशाह का शहंशाह, शहजादों का शहजादा है खुदा यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तो हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा हाथ हम पर बढ़ा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तू हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, सारा इज्जत अजरा तेरे नाम को देते हैं, सब कुछ मांगती और पा लेती हैं इस मसीह के जिंदा और जलाई नाम से, आमीन। धन्यवाद। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा उनके सुम से आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आमीन। आमीन जी। God bless you. जी, किसी ने कुछ अगर कहना है, कोई खुदा ने टच किया है किसी जरिए से कलाम में या दुआ में, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, दुआ कराਉਣੀ ਸੀ ਮਤਾਜ ਦੀ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ओके ਬਣਾਉਣ वाले। ਹਾਂਜੀ, ओके ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ओके जी। और किसी की कोई रिक्वेस्ट है अगर तो बता सकते हैं। अमनदीप, आपने कुछ कहना? हाँ जी सिस्टर जी, आपने बाद में कौन सा चैप्टर कहा था? शैडो इब्रानी? नहीं, कोई शाया ऐसे कहा था, मुझे पता यसाया, नहीं। हाँ हाँ। यसाया नु अंजना की कहते ने दसी सिस्टर नु जसाया कहते बाप जी, साडे भी जसाया जसाया। अच्छा, मैं देख लूंगी, मुझे गलत बुक समझाया, ऑफ रनन शाया समझ आया, शाया। ਜਦੋਂ ओके ठीक है। चलो ठीक। बुक होता तो बाद आप, है ना बाजी आप शुरू मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर करना, उसे काम मिल जाए, राहुल उसका नाम है। ओके ठीक है जी। थैंक हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है बाप। खुदा ने मुमताज को और रवि को, लवलीन को, लवी को, खुदा सिस्टर महेंद्र को
और ब्रदर सोहन को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ, उनके घर को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपाती हैं। जो भी उनकी बेसमेंट की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खुदाम खुदा, जो भी बनाने वाले हैं खुदावंद उन सबको भी यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ, ताकि वो इस काम को ईमानदारी से करें, वफादारी से करें यीशु के नाम से खुदाम खुदा। तो उनके दिलों को तैयार कर, उनकी सोचों को तैयार कर यीशु के नाम से खुदा। तो उनको खुदाम तेरे फरिश्ते मुकर्रर कर देती हूँ कि खुदाम वो लेके आए उनको, और खुदाम वो तेरी बेटी की जो बेसमेंट का काम बाकी रह गया है यीशु के नाम से उसको वो कर सकें। और खुदाम तेरे फरिश्ते जितनी देर बेसमेंट बन ना जाए खुदाम यीशु के नाम से तेरे फरिश्ते खुदावंद उनको अरेस्ट करके रखें, और खुदावंद वो इस बेसमेंट के काम को मुकम्मल करें, और खुदावंद खुदा परफेक्ट करें। खुदावंद खुदा इनका कोई भी पैसा जाया ना हो यीशु के नाम से, मुमताज का यीशु के नाम से खुदावंद इस घराने को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, ताकि खुदावंद खुदावंद तेरी बेटी तेरे बच्चे खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं, और खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और खुदावंद अपने बदनों के जरिए से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और खुदावंद गवाही दें कि हमारे यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। तो वो अपने बच्चों की हिफाजत और निगहबानी कर खुदावंद, तेरा पहरा उस घर पे हमेशा लगा रहे खुदावंद, तेरे निगहबान और पाक फरिश्ते हमेशा उस घर की उस घराने की हिफाजत और निगहबानी करते रहे यीशु के नाम से खुदा। खुदावंद इसी तौर से सिस्टर दीप को, उनके बेटे को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। जो भी जॉब प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खुदावंद खुदा वो हल हो, और खुदावंद तेरी बेटी खुदावंद गवाही दे के मेरे खुदावंद ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद जो भी प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से इस घराने से जाती रहे, और खुदावंद जो बाकी की फैमिली है वो भी खुदावंद तुझे अपना निजात देंदा, अपना मुक्तिदाता कबूल करे यीशु के नाम से। खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद मुन्ने के लिए मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद उसके लिए जॉब के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे बेटे के लिए खुदावंद खुदा जो तूने जगह मुकर्रर की है सरफराजी की, कामयाबी की, यीशु के नाम से वो दरवाजे खुल जाएं। और यीशु खुदावंद के तेरा नाम बेटा खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद, और शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है खुदावंद तेरे हुजूर चढ़ाए यीशु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं खुदावंद खुदा। और हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हमने तुझसे मांगा है खुदावंद वो तूने हमें दे दिया है। यस लॉर्ड हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर किसी और ने कुछ कहना है तो वो कह सकता है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। आमीन आमीन जी। माया, आमीन। सनिया या किसी और ने कुछ, वफा, सुशीला, सराफिन। प्रेज द लॉर्ड दी। जी माया। आदि से वचन से तसल्ली मिली और सीखने भी मिली। ओके जी, प्रेज गॉड जी। जैसे प्रेज जब गॉड। भी पढ़ी तो हूँ 2-3 बार, पर कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे अभी आप एक एक वर्स बाय वर्स जाते हैं तो बहुत आसानी से पढ़ने में भी और समझ में भी आ रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद, आपको भी प्रभु को धन्यवाद। ओके जी, खुदावंद आपको बरकत दे, और गुड नाइट जी।